Good morning, everyone. As we all know that today's revision session and on this revision session, the topic what we are about to discuss is the types of non-verbal communication. This topic is from unit number 1. So this is the types of non-verbal communication. That what is non-verbal, what are the types of basically non-verbal communication is. As we all know, the non-verbal communication means the communication in which we never use words. And instead of using words, we use our arms, hands, head. It means the body parts, the various body parts to convey the meaning or the message to the other person. Now, what are the various types of non-verbal communication? The number one is, that is a kinesis. The first one is a kinesis. This kinesis is also known as paralinguistic or the paralanguage. Kinesis deal with physical movements, sometimes calls affective display. Kinesis को हम physical movements भी कहते हैं. It is known as physical movements. Sometimes called affective display. Affective display means हम लोग physical movements के through जो हम चीज़ें display करते हैं, that is also known as affective display. This study applies traditional linguistic principles to the body as the whole or to the specific parts, particularly the face, hands and arms. किनेसिस में बेसिकली फेस, हैंड्स, आर्म्स यानी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हम इस्तेमाल करते हैं. वी यूज डिफरेंट बॉडी पार्ट्स टू कन्वे द मीनिंग और टू कन्वे द मैसेज टू द अदर पर्सन. इट ऑल्सो डील्स विद द पोस्चर ऑफ स्टैंडिंग एंड सिटिंग. फॉर एग्जाम्पल, standing posture, sitting posture, these all postures also indicates or conveys a message to the other person, as well as the eye or facial expression. Kinesis generally refers not to sign language that relies on gesture and expression in the grammatical context as an alternative to spoken language. Kinesis is basically an alternative to spoken language. कई चीज़ों में ऐसा होता है कि हम स्पोकन लैंग्वेज जो हम शब्दों के द्वारा नहीं बता सकते हैं, वो हम अपने डिफरेंट बॉडी पोस्चर्स के थ्रू या अपने बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के थ्रू हम चीज़ों को आगे कन्वे करते हैं. फॉर एग्जांपल, फ्रॉम अ फेस, हैंड्स, फेशियल मूवमेंट्स, हैंड मूवमेंट्स, आर्म मूवमेंट्स, इनके थ्रू जब हम कोई भी मैसेज जो है वो कन्वे करते हैं और सामने वाले को मैसेज कन्वे करते हैं, बट वी नेवर यूज वर्ड्स, पर हम शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते, उसको हम कहते हैं किनेसिस. The second one is that is a proximus. Now, what is proximus? Proximus is also known as basically a distance language. Proximus. It involves a social use of space in the communication situation. Proximus मतलब होता है basically जो हम अपना distance, जो space हम इस्तेमाल करते हैं communication के लिए, उसको हम proximus कहते हैं. One aspect of this is the closeness between among people when they speak and the significant role that the culture plays in this. Distance is generally described in a quantum of for intimate space 0 to 8 inches, to personal space or informal distance 18 inches to 4 feet, and social space formal 4 to 12, and public space distance beyond 12 feet. प्रॉक्सिमस बेसिकली होता है स्पेस लैंग्वेज, यानी कि जितना हम ये मानते हैं जितना ज़्यादा स्पेस बढ़ता है वैसे वैसे करके हमारे जो कम्युनिकेशन जो है उस पर भी इम्पैक्ट या उसमें इफेक्ट जो है वो पड़ता है. हमने डिस्टेंसेस को, स्पेसेस को हमने डिफरेंट 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है. फॉर एग्जांपल, इंटीमेट स्पेस होता है 0 to 18 इंचेस. इंटीमेट स्पेस, इसमें आपके फैमिली, फ्रेंड्स, क्लोज रिलेटिव्स, ये सभी आपके फैमिली मेम्बर्स, ये सारे लोग जो है वो बेसिकली इस इंटीमेट स्पेस के अंदर आते हैं. द नेक्स्ट वन इज दैट द पब्लिक पर्सनल स्पेस. जो पर्सनल स्पेस होता है उसको हम 18 इंचेस टू 4 फीट कहते हैं. 18 इंचेस से 4 फीट तक जो डिस्टेंस होता है दैट इज योर पर्सनल स्पेस. टू सोशल स्पेस, और इसके बाद थर्ड वन होता है दैट इज सोशल स्पेस. सोशल स्पेस 4 to 12 फीट होता है. जैसे कोई डिबेट है या कोई दूसरे तरह का किसी तरह का कोई स्पीच जो है वो प्रेजेंट कर रहा है, तो उसमें हम बेसिकली सोशल स्पेस को हम मेंशन करते हैं और दैट इज अ 4 to 12 फीट. एंड पब्लिक स्पेस जो डिस्टेंस होता है वो 12 फीट से बियॉन्ड होता है. तो बेसिकली प्रॉक्सिमस इज ऑल्सो नोन एज स्पेस लैंग्वेज, जहाँ पे डिफरेंट स्पेसेस के थ्रू हम अपने चीज़ों को या अपने बातों को कम्युनिकेट करते हैं. प्रॉक्सिमस ऑल्सो डील्स विद इफेक्टिव यूज स्पेस एंड सोशल सेटिंग. प्रॉक्सिमस का हम इस्तेमाल करते हैं बेसिकली कि सोशल सेटिंग में स्पेस का किस तरह से इस्तेमाल किया जाए. The third one is that is a haptics. Now, what is haptics? Haptic is also known as touch language. Basically, it is also known as touch language. It focuses on touching as an element of communication. Haptics का मतलब होता है जहाँ पे कि हम touching यानी कि हम टच करके चीज़ों को पता लगाते हैं. हम टच लैंग्वेज होता है. हम अच्छे जानते हैं कि आप किसी गुस्से से अगर किसी को टच करते हो तो आपका टच अलग होगा, अगर आप प्यार से टच करते हो तो वो टच जो है वो अलग होगा. तो बेसिकली टचिंग जो है वो भी कहीं ना कहीं आपका कम्युनिकेशन यानी कि बहुत सारे मैसेजेस जो हैं वो कन्वे करती हैं.
It focuses on touching as an element of communication, indicating the type of touch as well as its frequency and intensity. टच लैंग्वेज होता है उसका हम उसकी फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी से हम पता लगा सकते हैं कि वो टच जो है वो किस तरह का है और वो हमको क्या बेसिक मैसेज जो है वो कन्वे कर रहा है. Like any other elements of non-verbal communication, haptics is very much in function of nature. जैसे हमारे पास non-verbal communication के बाकी methods हैं, for example आपका kinesis हो गया, proximus हो गया, similarly haptics जो होता है ये भी बहुत ज़्यादा functionate होता है, ये बहुत ज़्यादा useful होता है in nature में. The fourth is chronomics. What is chronomics? Basically chronomics बेसिकली होता है आपके पास कि टाइम, डेज, इसके अकॉर्डिंग जब हम कम्युनिकेट करते हैं. देखिए इट डील्स विद द यूज ऑफ टाइम एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन. हम ये मानते हैं कि टाइम जो होता है वो एक कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट या वाइटल रोल जो है प्ले करता है. अगर टाइम में चीज़ें कन्वे कर दी जाए तो उसका आउटकम निकलता है, अगर टाइमली चीज़ें कन्वे नहीं की जाएगी तो उसका आउटकम भी नहीं निकलेगा. तो हम ये मानते हैं फॉर्मल टाइम इज मेजर्ड इन मिनट्स, आवर्स, डेज एंड सो ऑन. जैसे हम जानते हैं फॉर्मल टाइम जो है मिनट्स, आवर्स और डेज में हम गिनते हैं, और जो इनफॉर्मल टाइम होता है द इनफॉर्मल टाइम इज टू मेजर सीजन्स, सोशल कस्टम, लूनर साइकिल्स एंड एक्सेट्रा. और जो इनफॉर्मल टाइम होता है वो आपके कस्टम, लूनर साइकिल और सोशल और सीजन्स के अकॉर्डिंग मेजर होता है. Chronomics involves specific as a punctuality along with a pattern of dominance and difference within the communication. अगर हमें देखा जाए chronomics जो होता है बेसिकली टाइम लैंग्वेज होता है और ये टाइम के साथ ही डील करता है. यानी अगर चीज़ें जो हैं अगर टाइमली है, अगर चीज़ें जो है वो सही ढंग से टाइमली कन्वे की जाती हैं तो उसका कहीं ना कहीं हमें आउटकम जो है वो निकल के आता है. और अगर चीज़ें जो है वो टाइमली कन्वे नहीं होंगी तो उसका आउटकम हमें निकल के नहीं आएगा या फिर हमारे अकॉर्डिंग वो आउटकम जो है वो हमें प्रोवाइड नहीं होगा. तो दैट इज योर क्रोनोमिक्स. The fifth one is gesture. Now what is gesture? Gesture आप अच्छे से पता है. What is gesture? Basically हाथों का इस्तेमाल करते हुए, आपके हेड का इस्तेमाल करते हुए, आइज का इस्तेमाल करते हुए जब हम अपने मैसेजेस को कन्वे करते हैं. बट वी नेवर यूज वर्ड्स, रादर वी यूज डिफरेंट साइन लैंग्वेजेस टू कन्वे द मीनिंग or to convey the message to other person. Deliberate movement of signals are an important way to communicate meaning without words. Deliberate movements of signals. अगर हम अपने मूवमेंट, अपने अलग अलग मूवमेंट्स के थ्रू जब हम कोई मैसेज जो है वो कम्युनिकेट करते हैं तो वो जो मैसेज है वो भी कहीं ना कहीं हम लोगों को बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें जो है वो बताता है, मैसेज को कन्वे करने में हमें हेल्प करता है. डिफरेंट साइन लैंग्वेजेस. कॉमन जेस्चर इंक्लूडिंग वेविंग, पॉइंटिंग एंड यूज फिंगर्स इंडिकेट न्यूमरिक अमाउंट्स. अगर हम देखा जाए कॉमन जेस्चर्स होते हैं जैसे वेविंग, अपने हाथ को हिला के मैसेज कन्वे करना, किसी को बुलाना आपने हाथ हिला दिया, भेजना आपने दूर से हाथ हिला दिया, सामने वाले को पता है कि हाथ हिलाने का लैंग्वेज यानी ये साइन लैंग्वेज हमको ये बता रहा है तो ही कैन एबल टू डू द थिंग्स अकॉर्डिंगली. पॉइंटिंग आउट, अगर इसको पॉइंट करना है, फिंगर पॉइंट किया आपने या आपने पिन पॉइंट किसी को किया है तो उससे आपको पता लग जाएगा. यूज ऑफ फिंगर इंडिकेट न्यूमेरिक अमाउंट्स. इस तरह अगर हम हाथों के द्वारा किसी को 4 बताना है, 1 या 2 अगर हमें बताना है तो हम डिफरेंट फिंगर्स का इस्तेमाल करते हुए चीज़ों को कम्युनिकेट करते हैं. तो बेसिकली जेस्चर मीन्स वॉट? जेस्चर मीन्स कि जब हम अपने वेरियस बॉडी मूवमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, फॉर वॉट? फॉर कम्युनिकेटिंग द मैसेज टू अदर पर्सन. दिस इज जेस्चर. Now the sixth one is the occlusus. Now the occlusus means eye movement. Eyes जो है वो भी कहीं ना कहीं हमारे लिए एक बहुत vital source है to communicate और to deliver the message to other person. आपने देखा होगा कि कई बार अगर आप किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, आप उसको बहुत ज़्यादा गौर से आप देखते हो तो उसमें आपका इंटरेस्ट जो है शो होता है. अगर किसी चीज़ में आपका इंटरेस्ट नहीं है और यू वांट टू एस्केप फ्रॉम दैट पर्टिकुलर थिंग तो आप अपनी आंखें जो है वो चुराओगे, नज़र जो है वो आप चुराओगे. तो दैट आईज जो है वो भी कहीं ना कहीं मैसेज को सही ढंग से कम्युनिकेट करने का एक बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट टूल है, एक इम्पॉर्टेंट माध्यम है. ऑक्लसिस क्लोज रिलेटेड टू कैनेसिस. ऑक्लसिस को कैनेसिस भी से बहुत क्लोज रिलेट किया जाता है. कैनेसिस जैसे बॉडी पार्ट का मूवमेंट होता है, इसमें हैंड्स हो गए, आर्म्स हो गए, हेड हो गया, ठीक है, इनको जब इस्तेमाल करते हैं हम कम्युनिकेट करते हैं. सिमिलरली जो ऑक्लसिस होता है ये केवल आई मूवमेंट होता है बेसिकली, इसीलिए हम, क्योंकि आई इज ऑल्सो वन ऑफ द बॉडी पार्ट ओनली, इसीलिए वो कैनेसिस के अंदर कैनेसिस से क्लोजली रिलेटेड है. ऑक्लसिस डील विद आई बिहेवियर. ऑक्लसिस आई बिहेवियर से डील करता है एज एन एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि आईज जो है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है कि जहाँ पे हम चीज़ों को
ढंग से कम्युनिकेट कर सकें या हम कम्युनिकेट करें. सम एस्पेक्ट्स ऑफ ओकल्सिस डील विद स्टैटिक और फिक्स्ड गेज वर्सेस डायनामिक आई मूवमेंट. देखिए अगर देखा जाए ओकल्सिस दो तरह के होते हैं. एक तो होता है दैट इज स्टैटिक और फिक्स्ड गेज, कि किसी चीज़ को जब हम बहुत स्टैटिकली यानी कि बहुत ज़्यादा हम ध्यान से हम चीज़ों को देखते हैं, और एक होता है डायनामिक आई मूवमेंट यानी कि जहाँ पे आप चीज़ों को देखते तो हो पर आप बहुत जल्दी चीज़ों को जो है वो बर्ड आई व्यू यानी बहुत जल्दी चीज़ों से अपनी नज़रों को हटाते रहते हो. तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो स्टैटिक या फिक्स गेज आइज होता है, ये कहीं ना कहीं लोगों का इंटरेस्ट जो है वो बताता है. अगर चीज़ जो बहुत गौर से देखोगे तो वो आपका इंटरेस्ट जो है वो जनरेट करेगा, इंटरेस्ट बताएगा. और वहीं पे ही इसके बिल्कुल वाइस एंड वर्सा, अगर आपका आई मूवमेंट कंटिन्यूएशन में हो रहा है यानी चीज़ों से आप चीज़ों को देख रहे हो फिर आप एकदम से वहाँ से आपका ध्यान जो हट जा रहा है या आपका कॉन्सेंट्रेशन वहाँ से हट रहा है, तो कहीं ना कहीं वो जो चीज़ें होती हैं वो आपका दिखाती हैं कि आपका इंटरेस्ट जो है वो कंपैरेटिव उन चीज़ों में कम है. This so-called eye contact is subject to much interpretation by the observer, making it difficult to predict its exact communication impact. अगर देखा जाए तो आई मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट होता है जिसको जो ऑब्जर्वर होता है इसको बहुत मुश्किल से पढ़ पाता है, क्योंकि आई मूवमेंट जो है उसको पढ़ना या उसके अकॉर्डिंग किसी भी तरह का कोई भी रिजल्ट या आउटकम निकालना इट्स वेरी डिफिकल्ट. क्योंकि आई मूवमेंट कब किसका कैसा है, किस तरह का मूड है, किस तरह का आई मूवमेंट कर रहा है, सामने वाले अगर बहुत ज़्यादा जस्टिफेबल होगा, उसको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा तो ही वो कर पाएगा इसको. नहीं तो वो हो सकता है इट मे बी पॉसिबल कि ही कैन एबल टू इंटरप्रेट इट रॉन्ग, कि वो उसको गलत भी ले ले. तो आई मूवमेंट जो होता है ऑल्दो इट प्लेज अ वाइटल रोल, ये बहुत वाइटल रोल प्ले करता है हमारे पूरे कम्युनिकेशन प्रोसेस में. बट इस आई मूवमेंट के थ्रू अगर हम चीज़ों को बताते हैं, ऑब्जर्वर अगर चाहता है कि मैं इसको बहुत जल्दी से पढ़ लूँ या समझ लूँ, तो somehow somewhat it becomes difficult for the observer even to go through with it. The seventh is paralinguistic. देखिए paralinguistic बेसिकली होता क्या है, देखिए paralinguistic is known as पैरालैंग्वेज, इसको पैरालैंग्वेज भी कहा जाता है. पैरालिंग्विस्टिक में बेसिकली क्या होता है कि हम लोग जैसे जब हम कोई भी चीज़ बोलते हैं तो हम वर्ड्स को देखते हैं, सेंटेंस फ्रेमिंग देखते हैं, हम ग्रामेटिकली चीज़ को करेक्ट करते हैं, देखते हैं. पैरालिंग्विस्टिक में हम लोग वर्ड्स को नहीं देखते, ग्रामेटिकल करेक्शन या सेंटेंस फ्रेमिंग नहीं होता, रादर इसके पीछे की जो चीज़ें हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका लाउडनेस, आपका पिच, आपका टेम्पो, इन चीज़ों को हम जो है कैलकुलेट या इवैल्यूएट करते हैं. पैरालिंग्विस्टिक रिफर्स टू वोकल कम्युनिकेशन. पैरालिंग्विस्टिक जो है वो वोकल कम्युनिकेशन को प्रेजेंट करता है, दैट इज सेपरेट फ्रॉम एक्चुअल लैंग्वेज. और इस यही चीज़ है कि आपकी इस वोकल कम्युनिकेशन और एक्चुअल लैंग्वेज जो है ये दोनों अलग अलग होती है. एक्चुअल लैंग्वेज में तो बेसिकली यू आर यूजिंग द लैंग्वेज, यू आर यूजिंग द वर्ड्स, यू आर फ्रेमिंग द सेंटेंसेस, दैट इज योर एक्चुअल लैंग्वेज. और जो वोकल होता है बेसिकली उसमें आपका ये नहीं होता, इसमें आपका पिच, टेम्पो, वॉल्यूम, स्पीड, पॉज, इन चीज़ों को जो हम इवैल्यूएट करते हैं. दिस इंक्लूड्स फैक्टर्स सच एज टोन ऑफ वॉइस. पैरालिंग्विस्टिक में बेसिकली आपका क्या है, टोन ऑफ वॉइस यानी आपका वॉइस की आपकी टोन, द लाउडनेस, क्या आपकी लाउडनेस कितनी है. जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने बहुत बड़ी एक ऑडियंस की गैदरिंग है, बहुत धीरे अगर आप बोल रहे हो, आपकी लाउडनेस इतनी ज़्यादा नहीं है, पीछे तक आवाज़ नहीं पहुँचेगी, तो आपका जो कम्युनिकेशन जो है वो बेकार हो जाएगा, इट्स ऑल वेन. तो लाउडनेस जो है वो अकॉर्डिंग टू कम्युनिकेशन होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू ऑडियंस होना चाहिए, और एडजस्टेबल और मॉड्यूलिंग होना चाहिए. इन्फ्लेक्शन एंड पिच, इसका पिच और इन्फ्लेशन जो है वो बिल्कुल सही होना चाहिए. कंसीडर पावरफुल इफेक्ट ऑफ द टोन ऑफ वॉइस कैन हैव द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस. क्योंकि ये बहुत बार देखा गया है कि अगर आपका वॉइस में, अगर आपके टोन में बहुत, अगर आपका टोन अगर आपका अच्छा है, वॉइस में अगर आपकी वो क्वालिटी है, तो कहीं ना कहीं वो सेंटेंस में और ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट सेंटेंस में को और ज़्यादा मीनिंगफुल बना देती है, सेंटेंस को और ज़्यादा इम्पैक्टेड या इम्पैक्टफुल बना देती है. When said in a strong tone of voice, listener might have interpreted approval and enthusiasm. अगर आप किसी भी चीज़ को बहुत स्ट्रॉन्ग वॉइस के साथ अगर आप सपोर्ट करते हो, बहुत स्ट्रॉन्ग वॉइस अगर इस्तेमाल करते हो, तो जो लिसनर जो होता है बेसिकली, या जो रिसीवर जो होता है, वो इसको ये समझता है बेसिकली कि आप जो कह रहे हो वो अप्रूव्ड है, और एंथुजियाज्म यानी कि आपके बातों में कहीं ना कहीं एक बहुत वजन होता है, आप एंथुजियास्टिकली चीज़ों को बहुत ज़्यादा डील कर रहे हो. द सेम वर्ड सेड इन अ हेजिटेंट टोन, और वहीं पे अगर कोई चीज़ बहुत हेजिटेंटली कहा जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा मम या बहुत ज़्यादा इतना एंथुजियास्टिकली नहीं कहा जाएगा, तो इट कन्वेज अ डिसअप्रूवल, लैक ऑफ इंटरेस्ट. तो ये कहीं ना कहीं आपका लैक ऑफ इंटरेस्ट या डिसअप्रूवल को शो करता है. तो पैरालिंग्विस्टिक इज बेसिकली द वोकल कम्युनिकेशन, इट्स अ वोकल कम्युनिकेशन. बेसिक पैरालिंग्विस्टिक इज बेसिकली वोकल कम्युनिकेशन. और जो वोकल कम्युनिकेशन होता है पैरालिंग्विस्टिक का, वो ये होता है कि आपका इसमें टोन, पिच, वॉल्यूम, इन सबको मेजर किया जाता है. इसमें सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस फ्रेमिंग, इनका ये नहीं होता है. पैरालिंग्विस्टिक जो होता है
ये आपके कहीं ना कहीं लिसनर पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है, क्योंकि अगर आपका पैरालिंग्विस्टिक अच्छा है, अगर टोन, पिच, वॉल्यूम, लाउडनेस अकॉर्डिंग टू ऑडियंस है, तो उसका एक अलग सा इम्पैक्ट जो है वो ऑडियंस के ऊपर पड़ता है, और दे टेक यू सीरियसली, और वो आपकी बातों को बहुत ज़्यादा सुनते भी हैं, समझते भी हैं, आपका उनका इंटरेस्ट जो है वो भी जनरेट होता है. तो इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द receiver or the gathering of the receiver, paralinguistic. नाउ द एट्थ वन, द लास्ट वन इज द अपीयरेंस. देखिए अपीयरेंस जो है वो भी कहीं ना कहीं आपका एक मैसेज जो है वो कन्वे करता है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर बहुत शैबिली लुकिंग कोई होगा, बहुत ज़्यादा शैबिली अगर कोई ड्रेस्ड होगा, तो वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो सामने वाले पर डालेगा. और वहीं पे अगर कोई वेल ड्रेस्ड होगा, ग्रूम्ड होगा ढंग से, तो उसका एक अलग इम्पैक्ट जो है वो सामने वाले रिसीवर पे पड़ता है. अवर चॉइस ऑफ कलर, क्लोथिंग, हेयर स्टाइल एंड अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग अपीयरेंस आर कंसिडरिंग एज अ मीन ऑफ नॉन कम्युनिकेशन. हमारे कलर यानी हमारे चॉइस ऑफ कलर, हमारा जो कलर का जो चॉइस होता है वो कपड़ों के कलर का चॉइस, हमारी क्लोथिंग, हम कैसे कपड़े पहनते हैं, हेयर स्टाइल, हमारी हेयर स्टाइल जो है ना, अदर फैक्टर्स, और हमारे सारे फैक्टर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं. Research on color psychology has demonstrated that different colors can evoke different moods. वैसे देखा रिसर्चर्स ने भी इस चीज़ को रिसर्च करके पता लगाया है कि डिफरेंट कलर्स जो है आपके डिफरेंट मूड्स को शो करते हैं. ये हमारे साइकोलॉजिकल होता है. फॉर एग्जांपल इफ़ आई टॉक अबाउट, अगर आप देखें कि जो रेड कलर है वो गुस्से का है, वाइट कलर इज़ फॉर पीस, येलो, ग्रीन इज़ फॉर योर ट्रंक्वालिटी. तो ये जितने भी आपके कलर्स हैं ये जो है वो डिफरेंट मूड्स, डिफरेंट शेड्स को जो है बताते हैं. और हर एक व्यक्ति के जोडियक के अकॉर्डिंग या उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जैसा कलर वो पहनता है वैसे ही उसकी पर्सनालिटी जो है वो भी शो होती है इन फ्रंट ऑफ पब्लिक और इन फ्रंट ऑफ अदर पर्सन. अपीयरेंस कैन ऑल्सो ऑल्टर साइकोलॉजिकल रिएक्शन, जजमेंट, इंटरप्रिटेशन. और इंसानों का जो अपीयरेंस होता है, जो उनके ओवरऑल जो लुकिंग होती है, उनका पहनावा, उनका देयर हेयर स्टाइल, देयर ड्रेसिंग सेंस, देयर हेयर स्टाइल, देयर वॉकिंग, टॉकिंग, सिटिंग एंड द यूज ऑफ देयर जेस्चर एंड द पोस्चर्स इफेक्टिवली ऑल्सो कन्वेज सर्टेन मीनिंग्स टू द रिसीवर. Also conveys certain meaning to the receiver. So appearance actually also plays a vital role by conveying the message to the receiver. So now we are having the 8 points. इस तरह से हमारे पास 8 पॉइंट होते हैं नॉन कम्युनिकेशन के. वन इज द kinesis. Kinesis means using your face, hands, arms, eyes and conveys the meaning to other person. Proximus is basically your distance language or the space language it is known as. We are having the 4 different types of we have categorized in it in 4 different types. Various, that is the intimate space 0 to 18 inches, then there is a personal space 18 to 4, then there's social space 4 to 12, and the public space that is beyond 12 feet. So these are the proximus. Then haptic is also known as touch language, where the people touch and conveys the meaning, because touch language also conveys certain meanings. Then there is a chronemius. Chronemius is basically what, it's known as time language also. Chronemius, time language means when the things are conveyed within the time frame, or the things are conveyed in time, it actually creates a good impact and it also gives an outcome. But if the things are not conveyed timely, or things are not conveyed timely, or the things are not interpreted timely, then the outcome will not be the desired one. The next one is a gesture. The gesture means that is the same. The gesture means also the different body parts we are using it. Basically gestures. Gestures means basically the using of finger, using of arm, using of hands. And through these, when you conveys the meaning to the other person, it is known as gesture. The sixth is oculosis. Oculosis is basically eye movement. It means that if you are having a static or gazed eyes, it means that you are showing the interest. And whereas vice versa case, if you are having a very dynamic eye movement where you are not putting that much attention, it means that you are having the lack of interest on that particular thing. So oculosis means it is the your eye movement. Then the paralinguistic is same, that is vocal communication. Paralinguistic, actually in paralinguistic we used to consider pitch, volume, loudness, pause. These things are being considered in paralinguistic. The sentence framing, sentence, grammatical corrections are not there. Basically pitch, tempo, volume,
your pause, these things we used to consider paralanguage. And the eighth one is appearance. Appearance means that your color, your clothing style, your hairstyle, your posture, your gestures, your body, the use of your different various body parts, these all actually includes an appearance, and this appearance also create a very great impact in your audience or in your receiver. So these are the basically 8 different methods or the various types of non-verbal communication.